નમસ્કાર. શ્રી ભગવતી વિદ્યાલય, ધોરણ 6, વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 2, અનૂઠે ઇન્સાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ અનૂઠે ઇન્સાન વિશેની સમજૂતી મેળવી લીધેલી છે. તેમાં દો પ્રસંગની બાત की थी. एक प्रश्न था नेपोलियन और दूसरे प्रसंग था सच्चा दान के. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ જોઈએ અભ્યાસ. અભ્યાસમાં પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. એમાં આપણને પ્રશ્ન આપેલા છે. પેલો છે, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था. उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था. अपने कारण हुए दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था. उसकी बहन का चरित्र इसके विपरीत था. वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी. वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी. उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं. इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था. बीजो प्रश्न छे, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो बोलो जी विद्यार्थी मित्रों, आप नेपोलियन ની જગ્યાએ હોત તો શું કરત? તો તમારે એમનો ઉત્તર જાતે લખવાનો છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं? તો આપ છે એ તમારો તમે પોતે જ તમારા જેબ ખર્ચ એટલે કે ખીચા ખર્ચનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો? અહીંયા આપણને નેપોલિયન છે એણે પોતાનો જેબ ખર્ચ કેવી રીતે ઉપયોગ કર્યો તે આપણને ખબર છે. તો તમારે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર છે એ જાતે લખવાનો છે. ચોથો પ્રશ્ન છે, બાપू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो તમારે बापू विषे लखवानुं छे कि बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं. महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी. वे अनेक बार जेल में गए. उन्होंने कई सत्याग्रह किए. आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उसका पूरा साथ दिया. लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ. 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई. बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया. उनकी समाधि राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है. तो तुम्हारे बापू के बारे में लिखना है. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, બાપू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? અહીંયા આપણને સચ્ચા દાનમાં કે બાપુ છે એ ધન એકઠું કરી રહ્યા હતા. શા માટે? તો કે बापू छे उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था. बापू उसके नेता थे. आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी. बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे. छठो प्रश्न है, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा और क्यों? तो तमारे એમનો ઉત્તર લખવાનો છે. તમને જેવું કૌમુદીનું પાત્ર લાગ્યું હોય એના વિશે લખવાનું છે. સાતમો છે, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए. તો તમારે તમારા માતા પિતાની સામે તમે ક્યારેય ગલતીનો સ્વીકાર કર્યો છે? કંઈ પણ તમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તેમનો? તો એ ઘટના, એ જ્યારે પ્રસંગ બનેલો હોય
તેના વિશે તમારે થોડાક વાક્ય લખવાના છે। प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। અહીં આપણને સંયુક્તાક્ષર છે એનાથી શબ્દ બનાવવાનો છે। એક એક શબ્દ બનાવીને આપેલો છે। બીજા બે શબ્દ છે એ તમારે બનાવવાના છે। અહીંયા એક આપેલું છે દ અને ધ, એ બે શબ્દ છે, બે મૂળાક્ષર છે, એનાથી એક શબ્દ બને છે ધ, તો એ છે સંયુક્ત વર્ણ ને એનાથી શબ્દ બને છે શુદ્ધ। હવે તમારે બીજા બે શબ્દ છે બનાવવાના છે, તો એક થશે બુધ, શુદ્ધ બુધ, અને કૃત, તો તે તમારે અહીં લખવાના છે। ત્યાર પછી છે ત પ્લસ ત, તો ત્ર, વિથ, અને એક શબ્દ આપેલો છે બીજા બે, તો કુત્તા અને છત્તા, તે તમારે અહીંયા લખવાનું છે। કુત્તા અને છત્તા। ત્યાર પછી છે દ અને મ, બંનેથી બનતો સંયુક્ત વર્ણ, તેનાથી બનતો શબ્દ પદ્મ એ આપેલો છે, તો તમારે બીજા બે શબ્દ છે એ લખવાના છે। તો એક પદ્મ આપેલો છે, છદ્મ અને સદ્મ, એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે। પની જગ્યાએ છ અને સ, તે બે શબ્દ છે એ તમારે અહીંયા લખવાનો છે। આ પ છે એની જગ્યાએ સ લખશો તો તમારે શબ્દ બની જશે, અને એક આ સ લખજો તો બે શબ્દ બની જશે। ત્યાર પછી છે દ અને વ થી બનતો દ્વ, વિદ્વાન, તો દ્વાર અને દેશ, એ બે શબ્દ બીજા તમારે લખવાના છે। પાંચમું છે હ અને મ થી, તો બ્રહ્મ, એ આપણને આપેલું છે। પછી બ્રાહ્મણ અને બ્રહ્માંડ, એ બે શબ્દ તમારે લખવાના છે। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। અહીંયા આપણને આપેલું છે, પેલું છે મહાત્મા ગાંધી ઓર દેશ પ્રેમ, એના વિશે તમારે ચર્ચા કરવાની છે। બીજું છે इंसान अनूठा कब कहलाता है और तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे। એ ત્રણ આપણને ટોપિક આપેલા છે, એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે। તો પેલું હું તમને કહું છું, મહાત્મા ગાંધી ઓર દેશ પ્રેમ, તો એક વિદ્યાર્થી હોય ને શિક્ષક હોય, તો चर्चा करे છે। शिक्षक કહે છે, विद्यार्थी हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं। तो एक कोई विद्यार्थी કહે છે, गुरुजी हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। शिक्षक कहे છે, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। तो ए बीजो विद्यार्थी કહે છે कि गुरुजी गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। કોઈ બીજો વિદ્યાર્થી કહે છે
कि उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए, उन्होंने कई बार उपवास किए, देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा, उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की, सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। तो एवी रीतनी तमारे बीजा बे टॉपिक छे एना विशेनी चर्चा करवानी छे। प्रश्न नंबर 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। अपने अहींया शब्द आपेला छे धर्म એટલે કે ધાર્મિક। હવે એના પરથી વાક્ય આપણે બનાવવાના છે। તો વાક્ય આપણે બનાવીએ તો मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। भारत भारतीय। बीजू छे रंग रंगीन। तो रंगનું રંગીન થાય છે તો એના પરથી રંગીન ઉપરથી વાક્ય બનાવીએ તો शीला रंगीन कपड़े पसंद करती है। ત્રીજું છે लोभ लोभी। लोभी आदमी से कुछ पाने की आशा मत करो એવું વાક્ય બની। ભારત ભારતીય ભારતીય ઉપરથી વાક્ય બનાવીએ તો ભારતીય લોક અતિ પ્રિય હોતે હે એટલે ભારતના લોકો છે એ અતિથી પ્રિય હોતે હે। ચમકીલા ચમક ચમકીલા તો એમાંથી વાક્ય બનશે સોના ચમકીલા હોતા હે એટલે સોનાની વાત કરે છે એ ચમકીલું હોય છે। शक्ति शक्तिमान वह सभी काम करने में शक्तिमान है। गुण गुणवंती तो सुरेखा गुणवंती बालिका है। बल बलवान तो बलवान उपरથી વાક્ય બને भीम बहुत बलवान थे। दया दयावान तो दयावान थी वाक्य बनसे आप बड़े दयावान पुरुष है। दर्शन दर्शनीय दर्शनीय उपरથી वाक्य बनશે कि दक्षिण भारत में कई दर्शनीय स्थान है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। अहींया लिंग परिवर्तन करवानुं छे। अहींया उदाहरण आपेली छे पुत्र पुत्रमांथी पुत्री, स्त्रीलिंग ने पुल्लिंग। तो पुत्र पुत्री, मेढक मेढकी, तरुण तरुणी, कुमार कुमारी, देव देवी, हिरण हिरनी। तो लिंग परिवर्तन करवानुं छे आपणे दाखला तरीके छोकरो तो छोकरी तेवी रीतनुं छे। त्यार पछी छे साप सापनी तो ए तमने उदाहरण आपेलुं छे कुम्हार कुम्हारीन कुम्हारीन, नाग नागिन, बाघ बाघी बाघीन, धोबी धोबीन, वाला वालीन एवुं थाय। अहींया उदाहरण आपेलुं छे मोर अने मोरनी तो शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, ऊंट ऊंटनी। तो आ लिंग परिवर्तन थयुं। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आपने पहला अहींया बे उदाहरण आपेला छे हिरण अने एटले हिरनी तो हिरण दौड़ रहा है हिरनी दौड़ रही है। पुत्र पुत्री तो के राहुल राजीव गांधी के पुत्र है अने इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। एवा आपने बे उदाहरण आपेला छे। हवे आपणे पेलुं मेढक ने मेढकी एवुं करेलुं छे लिंग परिवर्तन करवानुं करेलुं छे एनामांथी वाक्य बनाववाना छे। अहींया मेढक तो मेढकी तो मेढक टरटरा
रहा है અને मेढकी टरटरा रही है। स्त्रीलिंग ने पुल्लिंग तो આપણે એમ કહીએ કે છોકરો ઊભો છે અને છોકરી ઊભી છે, તેવી રીતનું. હવે બીજું છે તરુણ અને तरुणी. तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है. હવે कुमार ने कुमारी तो कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है. देव ने देवी, देव मुस्कुरा रहा है અને દેવી મુસ્કુરા રહી है. ત્યાર પછી છે હિરણ અને હિરણીનું તો આપણે ઉદાહરણ આપેલું જ છે. હવે છે કુમ્હાર અને કુમ્હારીન તો કુમ્હાર ઘड़े बना रहा है અને कुम्हारीन घड़े बना रही है. नाग नागिन, नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है. बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है. धोबी ने धोबिन, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है. હવે वाला ने वालिन, वाला दूध ला रहा है, वालिन दूध ला रही है. शेर, शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है. जादूगर ने जादूगरनी, जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है. मास्टर ने मास्टरनी तो मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है. डॉक्टर ने डॉक्टरनी, डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है. ऊँट अने ऊँटनी, ऊँट बलबला रहा है, ऊँटनी बलबला रही है. तो अहींया लिंग परिवर्तन ए प्रश्न 5 જોઈ લીધો. પ્રશ્ન 6 માં જે આપણે શબ્દ છે એનું લિંગ પરિવર્તન કરેલું છે એનું વાક્ય બનાવવાનું, એટલે પુત્ર પુત્રી. તો આપણને પુત્ર અને પુત્રીનું ઉદાહરણ આપેલું છે એ જોયું કે ભાઈ રાહુલ રાજીવ ગાંધી કે પુત્ર હે અને इंदिराजी जवाहरलाल जी की पुत्री थी, એ એના વાક્ય થાય. તેવી જ રીતે બધા વાક્ય આપણે જોયા. હવે છે चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए. હવે તમારે કહાની લખવાની છે. અહીંયા ચિત્ર જોઈ અને કહાની લખવાની છે. તો આપણને ખબર છે આ ચિત્ર શેનું છે, તો આ બધા પ્રાણીઓ છે ક્યાં રહે તો કે જંગલમાં. એક જંગલ था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, एक તાલાબ એટલે કે તળાવને કિનારે, આપણે તળાવ દેખાય છે ચિત્રમાં, એને કિનારે કૌવા, ચૂહા और कछुआ कहीं दूर चले गए थे. એ અહીંયા તમને દેખાય છે. કૌવા, પછી એક હરણ એટલે हिरण, चूहा और कछुआ એ 4 મિત્ર રહેતે હે. ચિત્ર નંબર 1 માં આપણને જંગલ દેખાય છે, એમાં ચારે છે हिरण, चूहा, कछुआ અને કૌવા એ પણ દેખાય છે. ચિત્ર નંબર 2 માં એ चारे मित्र रहते थे रहे छे. एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गए. अपने चित्र नंबर 3 में જોઈએ तो से शिकारी ने जाल में फंसे हुए हिरण दिखाई दे रहा है. कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे. ये दूर क्या गया था. उसने मित्रों को हवा दी पर वहां कोई नहीं था. कुछ समय के बाद कौवा आया. उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ. उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता न करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त करता हूँ. પછી वह
उठता हुआ चूहे के पास पहुंचा और बोला, चूहा भाई जल्दी चलो, अपना मित्र हिरन शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। પછી અહીંયા આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે કે કૌવા છે ચૂહે को अपनी पीठ पर बिठा कर ले आया। એ ચિત્ર નંબર 3 હવે ચૂહે ने धीरे धीरे जाल काट डाला। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। चित्र नंबर 3 માં છે શિકારી ઊભો છે અને પછી ચિત્ર નંબર 4 માં જોઈએ તો એ દોડીને આવતો હોય એવો દેખાય છે। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। અહીંયા चित्र नंबर 5 में જોઈએ तो हिरण से ये जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उनके कछुओं को पकड़कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में सरक गया। અને शिकारी हाथ मलता रह गया। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने मित्रता निभाई। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા અટકશું। આગળનું છે તે આગળના વિડીયોમાં જોશું।